Hello, good morning guys. So are you the one who is going to appear for September 2026 exam? So here is the exam strategy for your advanced account subject. So most there is a question like which question you have to solve first, when you have to solve the MCQ. So I had covered a proper strategy for how to deal with advanced accounts question paper. So question 1 always come from 3 AS, mostly AS 15, AS 5, AS 4. Question 2 comes from financial statement and internal reconstruction. Question 3 cash flow and buyback or some other practical years like year 7. Question 4 for amalgamation. Question 5 consolidation. Question 6 one question of AS, one question of some chapters like internal reco, and one question from branch. So how you have to select the question? First, in starting 15 minutes you have to select the theoretical MCQ, like those 3 independent MCQ which has come in your exams. So in 15 minutes you have to solve those independent MCQ, or if you can also do this other MCQ case study which is like come from AS9, AS13, AS18, or some like AS26. These are so easy case study, so if you can deal with them in starting 15 minutes, you can cover those question in starting 15 minutes. So a major question that will we get the question paper of MCQ in the at 1:45 p.m. So yes, so from May attempt you will get the MCQ booklet also at 1:45 p.m. So you will get that. So you can also solve the MCQ in 15 minutes. So then after the spending of 15 minutes, you have to select question 6 and question 3. Question 6 comes from AS chapter and branch. So this will cover 14 marks. Then question 3 from cash flow buyback. So it will help you to cover total 28 marks. Then comes to question number 1. So then question number 1 it is come from AS. So this is so easy question. Don't let to solve the question number 1 in the last, otherwise you will skip this question. So question 1 you have to deal after question 6 or 3, which whatever how you are choosing, like you have good command in cash flow and AS, then first question 3, then question 6. And if you have good command in AS chapter or branch, then first question 6, then question number 3, then question 1, then remaining MCQ of whatever the marks, like around 18 marks, 18, 22 marks, you have to solve those case study. And then question 2, 4 or question 5, then you have to opt financial statement or internal ego. Most early in this attempt internal reconstruction will become in your exam from capital reduction account. Don't try to solve internal reconstruction in the first step. Follow this order to solve the questions exam. Okay, then question 4 amalgamation and consolidation, whichever you are opting. Like if you are doing more practice in amalgamation, only opt the amalgamation. If you are doing more practice in consolidation, complete the entire consolidation along with AS21, AS20, AS23 and AS27. Okay, then you have to choose only choose one among question 2, question 4 and question 5. So if you have to like choose either financial statement amalgamation or choose financial statement and or consolidation, don't skip the branch chapters. Skipping to question number 2, question 3 and then question 4 and question 6. Okay, ठीक है. तो नेक्स्ट आता है कि अपन को पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है. तो पेपर प्रेजेंटेशन के लिए मैंने टेलीग्राम पे ड्राइव अपलोड कर रखी है. ये मेरे पास नहीं है, इस वाले ड्राइव के अंदर है. तो अब इसके अंदर देखते हैं कि जो ऑल इंडिया रैंकर्स है वो अपनी प्रेजेंटेशन कैसे रखते हैं कि उनको इतने अच्छा मार्क्स मिलता है. तो ये देखो, ऑल इंडिया रैंक 1 सितंबर 2025 की. तो इससे आप ये देख सकते हो कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी होती है. तो देखो, इसने क्वेश्चन 6 को पहले उठाया. तो देखो, जैसे मैंने बोला ना कि पहले क्वेश्चन 6 उठा लो. क्वेश्चन 6 में क्या है कि अच्छे मार्क्स स्कोर करे. इसको क्वेश्चन 1 आता था, तो इसने क्वेश्चन 1 उठाया. और क्वेश्चन 1 बिकॉज इसको ईजी लगा. तो फॉर्मेटिंग कैसे होती है, AS22 का प्रेजेंटेशन ऐसे करना होता है. देखो, ये AS22 का प्रेजेंटेशन है. उसके बाद में ये AS2 का प्रेजेंटेशन कि यहाँ पे लिखा. उसके बाद थोड़ा डेफिनेशन, उसका प्रोविज़न लिखा. प्रोविजंस को हाईलाइट करा इसने, और जो मेन आंसर है इसके ऊपर उसने राउंड मार्क कर दिया. वर्किंग नोट लिखा कि ये वर्किंग नोट 1 है, ये वर्किंग नोट 2 है. देखो, उसके बाद में उसके बाद में ये सब लिखा है इसने. उसके बाद में वर्किंग नोट 1 ये है, वर्किंग नोट 2 ऐसे कैलकुलेशन करी है. उसके बाद में क्वेश्चन 1C के प्रेजेंटेशन AS9 को कैसे लिखना होता है. पहले प्रोविज़न लिखा इसने. उसके बाद में इसने फैक्ट्स ऑफ द केस लिखा. उसके बाद में इसने कंक्लूजन लिखा. देख रहे हो,
उसके बाद में ये देखो क्वेश्चन 6 है, उसके बाद में इसने क्वेश्चन 6 से लिखा है। उसके बाद में सेक्शन 6 भी लिखा है इसने। इंटरनल रिको भी लिखा। इंटरनल रिको के अंदर इसके प्रेजेंटेशन देखो, लाइनें भले ही कैसे भी हो, बट ये जो ब्रैकेट के अंदर जो इसने लिखा है डेबिट क्रेडिट ये सब इसने पूरा अच्छे से मेंशन करा है। तो ये जो आपको ब्रैकेट के अंदर इंटरनल रिको है पूरा मेंशन करना होता है, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट के अंदर मेंशन नहीं करोगे, नरेशन नहीं लिखोगे, तो आपके मार्क्स कटेंगे, जैसा भी मई 25 में भी हुआ। उसके बाद में ब्रांच अकाउंट का भी अच्छे से कर रखा है। देखो इसमें प्रेजेंटेशन ऐसे करनी होती है, और आपको ब्रांच अकाउंट के नीचे ये जो लेजेस बनते हैं, लेजेस कैसे बनाओ चलेगा, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देना बस। उसके बाद में कैश फ्लो का प्रेजेंटेशन देख लो, नोट्स टू अकाउंट्स। उसके बाद में ये किसका है, ये बैलेंस शीट के अंदर देखो इसने पहले बैलेंस शीट बनाई। उसके बाद में इसने नोट्स टू अकाउंट्स लिखे। नोट्स टू अकाउंट्स के बाद में इसने देखो जो एडिशनल डिस्क्लोजर होते हैं ना वो भी लिखने होते हैं। ये देखो 2 एडिशनल डिस्क्लोजर थे इसके अंदर। एडिशनल डिस्क्लोजर को नीचे लिखना होता है, नोट 1 एंड नोट 2 करके, ठीक है, जो वो बिल डिस्काउंटेड वाला है, ठीक है। उसके बाद में ये देखो कैश फ्लो की इसने कैसे कितनी बढ़िया इसने करी है। तो ऐसा करना होता है कि पहले आपने पूरा अच्छे से लिख दिया, इससे अच्छे से पता चला। उसके बाद वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 4। इसके बाद में इसने आगे लिखा भी हो कि ये जो अमाउंट आया वो वर्किंग नोट 1 से आया, ये वर्किंग नोट 2 से आया, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन 3 भी इसके अंदर देखो इसने कितने अच्छे से पूरी टेबल बना के प्रेजेंट करा है कि ईयर कैश फ्लो। तो ये आपको ऐसा टेबल बनानी है, ज़्यादा कुछ प्रेजेंटेशन नहीं करनी, खाली एक दो कुछ जो लाइन ड्रॉ करनी है तो वो लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग वैल्यू को देखो ऐसे करते हैं एडवांस अकाउंट की प्रेजेंटेशन। ये देखो इसने खिचड़ी कर दी। अगर ये थोड़ा सा और गैप करके लिखता ना, लाइक थोड़ा सा एक लाइन का गैप करके लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन मिलेगा, ठीक है। तो लाइक गैप छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बैलेंस शीट, ये आगे बैलेंस शीट, नोट्स टू बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये होगा ऐसे आपको प्रेजेंटेशन करनी है। उसके बाद में अब बोलोगे एक्सपेक्टेड टॉपिक लिस्ट। तो जो एडवांस अकाउंट की एक्सपेक्टेड टॉपिक लिस्ट है वो भी मैंने अपलोड कर रखी है। तो ये देखो ये सब की ड्राइव के लिए आपको मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे भी मिल जाएगी, एंड इवन मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी मिल जाएगी, लिंक मैं नीचे पिन कर दूँगा, ओके। ये देखो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक लिस्ट, इसमें होगी कॉपी ऑफ एडवांस अकाउंट्स। ये देखो सेक्शन, इसका मैंने पूरा वीडियो अपलोड कर रखा है, या एक ही चीज़ मैंने अच्छे समझाई तो वो आप रेफर कर सकते हो, ओके। तो यही है पूरी आपकी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। पहले आपको एमसीक्यू देखना है जो इंडिपेंडेंस है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 और 6 में क्वेश्चन नंबर 3 और 6, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद में एमसीक्यू, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद में जो आपका जो भी आप अमालगमेशन कर रहे हो या कंसल्टेशन कर रहे हो वो करके ख़त्म करना, ओके।